time, since our was the first batch, First batch, yeah. it was just one section. Right. And now I'm sitting in the classroom, so you can see the benches. Same Yes, section. yes, yes. So I'm quite jealous of it because we never got this right. I'll not speak much about this because it will go against us only. Ah. Right. So, anyways, guys, hi. Okay. Uh, Formally, Anand, just 1 minute. Formally, they give the introduction and just welcoming you. Right. Okay, okay, Ayushi, fine. please start, beta. Okay, ma'am. A very good morning to one and all present here. I, Ayushi Srivastav, on behalf of ITS, welcomes our esteemed alumni, Mr. Anand Rai, sir, to this virtual platform. I also welcome our Director Management, Dr. Vidya Sikri, ma'am, all the faculty members, and my dear batchmates to this wonderful morning of Alumni Talk series. I really appreciate this idea of Alumni Meet, which creates a special relationship between those students who have passed out and those who have already established themselves in larger outer world. To start with, I would like to give a brief introduction about Sir. Sir is having an experience of about 15 years, presently associated as regional head in sales working capital at ICICI Bank. Sir has started his career as relationship manager at India Bulls. He has also worked at various reputed organizations on different well-respected posts. Sir has also worked as equity advisor at Edelweiss Capital. Sir has also associated with different high designations in various ostensible organizations like Kotak Mahindra and HDFC Bank. Professionally, Sir has a strong customer relationship skills. He is also an expertise in problem solving and strong financial analytics. He is advising new businesses on formations of corporations and business structures. He is drafting privacy policies and structuring commercial transactions. So, without wasting much time, sir, we all are eager to listen your thoughts. Now, I would like to request you to take over the platform. Mute. You Thank are you so muted. much, Ayushi, for this warm welcome. Many of things I also forget that you have got me remembered. Thank you so much. So it was on a lighter note, but yes, hello everyone. Very good morning to each of you and all my senior, all my mentors, all my teachers, especially Ritu, who actually convinced me to take this session because I was not confident that yes, I'll take such a large audience on one call and share my I don't know good or bad experiences. So firstly, I'm really thankful to the ITS for inviting me for this wonderful session with you all. And I hope this session will be very interactive, not a single one way communication. I am looking forward for a two-way communication and an interactive session because it's a experience sharing of whatever I have felt in my short career. DK Pandey sir, good morning, and I was really missing you. I asked the first person कि पांडे सर कहाँ हैं? पांडे सर अभी है नहीं है शायद. No, he has joined. He has just messaged me. Good morning, Anand. Okay. Pandey हाँ. sir. Yeah, good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good So morning, Anand. I am particularly thankful to DK Pandey sir in my career. In DK Pandey sir, Dubey sir, Arun Tyagi sir, Sapna ma'am, Nidhi ma'am, Anju ma'am, who tried his best to teach us some accounting thesis, but हम लोगों ने उतना ही लिया जितना हमने समझना था और but everyone, I mean, maybe I forgot some of my respected teachers name, but I am really thankful like Bhattacharya sir, Vikas sir. So everybody has shaped in our career in such a manner that we are able to stand in front of anybody today. And same as for our non-teaching staff like our placement cell, our registrar office, our librarians, our research and other staff like cultural activities staff. So everybody has helped us in each and every manner. You will understand when you leave this wonderful institution. जब तक हम होते हैं वो कहते हैं घर की मुर्गी दार बराबर, लेकिन जब हम वहां से निकलते हैं हमारे को पता चलता है कि who has helped at what extent in our career. So यहाँ से मैं अपना अगर शुरू करूं तो आई विल नॉट गिव यू अ ज्ञान और स्पीच और समथिंग.
which is very boring, because nowadays YouTube and motivational videos have become so much common that you can see and listen very best of the best speakers available on online. So I'll not go on that speech part or the Gyan part, because we are already there in some very good institution, and surrounded by great teachers and great environment there. So I'll just share my experience, whatever I have done, and whatever I have been doing, I mean, continuously for last around 15 years. So first when I entered ITS, I was a desi UP wala ladka. So I met my teachers, and they actually started letting me know what MBA is, what management skills are, because I was a science graduate in chemistry honors, एंड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है. तो समटाइम्स ऐसा भी होता था कि हमारे टीचर्स हमारे को समझाते थे, ओ तू साइंस वाला है ना, तो तेरे को थोड़ा लेट से समझ में आएगा बेटा, बिकॉज यू ऑलवेज थिंक ऑफ लॉजिक एंड यू ऑलवेज थिंक ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड फार्मूला. सो थोड़ा टाइम लगा था, बट वी स्टार्टेड लर्निंग, वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग. इसमें मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, विच रितु was classmate. She was very studious and she got really good numbers throughout. But whatever my thinking was behind the learning experience, whoever, I mean, I always interacted with DK sir. He taught me everything, but not let me know how to keep yourself young, क्योंकि वो आज भी वैसे ही हैं, हम बूढ़े हो गए. Sir, please put on your video. Sir, Anand is eagerly want to see हाँ, you. मतलब सब कुछ सिखाया आपने, ये नहीं सिखाया सर कि फिट कैसे रहना है और कैसे यंग दिखना है हमेशा. तो आप तब भी वैसे ही थे सर, आज भी मतलब उससे और फिटर हैं. So I keep on staring at you on some Facebook post on and WhatsApp status and WhatsApp DP profiles, sir, DP pictures. So anyways, so whatever I have learned is, look, everything is nowhere written in the book. So this is my first experience, what I'll try to share with you, कि सब कुछ वो नहीं है, मतलब सब कुछ वो जो लाइफ में होता है, जो दुनिया में है, वो सारी चीजें आपकी किताबों में नहीं लिखी हुई हैं. किताबों में वो चीजें लिखी हुई हैं जो जनरलाइज चीजें हैं. यू हैव टू गो बियॉन्ड योर बुक्स ऑल्सो. सो यू मस्ट spend equal amount of time in your library and research section, go through the current assets, current affairs, and whatever is going on in the business, because जब आप यहाँ से निकलोगे, you will not go to any सरकारी organization or anywhere else, right? You will go, maximum of you, not necessarily, but generally you will go to some corporate houses, and you will try to increase the business, or increase the processes, or increase the product or the quality of an corporate. So जब भी आप वहां जाओगे, you need some hands-on experience on the current environment. So whatever Philip Kotler had written in his book is not wrong. He is right, but he has given you concept. He has not given you the current market scenario and the way market behaves actually. So आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको equal amount of time, जो मैंने फेस किया है अपने लाइफ में, equal amount of time you should spend in your library and research section, so that you can improve yourself as per the current business scenario, as per the current environment. Because जब आप बाहर जाओगे, आपको किताबें तो याद आएंगी, लेकिन शुरुआत में नहीं आएंगी. Initial years of your career will actually boast on the current market environment. आप कैसे बिहेव करते हो, आपका बिहेवियर क्या है लाइफ में. And it's maybe the session has been named as sales communication, sales orientation, customer experience, customer meeting, customer orientation, and all. But please remember, sales is everywhere. You are selling yourself whichever department you are in, whether in your technology department, or you are in HR, you are in marketing, you are in sales, you are in any department, or the operations. You have to sell at least one thing in your life, or maybe everything in your life, because whenever you are in some product or policy group, you are selling yourself, your ideas, your views, and whatever company requires. Because like you, there will be some 10 or 20 people, whoever ideas get clicked will be sold off, or the accepted by management of the company.
सो डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये एक सेल्स एंड मार्केटिंग सेशन है। आप लोग प्लीज इंटरेक्टिव रहना, पूछते रहना। तो मेरा आप लोग को यही समझाना है कि लाइफ में हमेशा आपको अपने आप को, एटलीस्ट अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को आपको बेचना होता है। उसके लिए you need to be informed well, very very well. Today if you see, if you read, if you understand, information or the info data is the real wealth. Facebook, WhatsApp, Geo are making billions of dollars just because of the data, information they have, the database they have. They do not need. If you see, Facebook has no product or services to sell, but the customer or the user, we are their products and we are selling on their behalf something or other things. So you have to be informed very very well as per the current market scenario. You please understand, always read some newspaper, always go through the online websites which are actually helpful, which will be actually helpful for you in your career. If you are not doing that, you are just only sticking to books or only sticking to newspaper and anything will not help you. You have to be dependent on both of them. You have to use them very very correctly. सो माई फर्स्ट एडवाइस, और जो समझ लो आप इसको, कि आप अपने आप को इन्फॉर्म रखो। आप ऋतु से भी पूछोगे कि हमारे बैच में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ बुक्स पे डिपेंडेंट थे, और कुछ सारे ऐसे लोग थे जो इक्वल टाइम वहां भी बिताते थे, रिसर्च सेक्शन एंड न्यूज़पेपर में भी बिताते थे, और दे आर डूइंग एक्चुअली गुड। मे बी देवर सम जूनियर कलीग ऑल्सो, मीन्स हमारे बाद वाले बैच के भी कुछ बच्चे थे। तो उनमें से भी जिन बच्चों ने अपने आप को इनहांस करने की कोशिश की, उन्होंने अच्छा किया लाइफ में, और जिन्होंने नहीं किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बुरा किया, बट दे आर नॉट डूइंग एज गुड एज द प्रीवियस वन आर डूइंग. So always connect yourself with the current world, because you are going to fight after this. I mean, maybe 6 month ना ऋतु, 6 महीने बाद तो सेशन ही खत्म ही हो जाएगा. सेशन ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल. तो 6 महीने बाद आपकी जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई खत्म हो जाएगी. एंड अभी जिन लोगों को लगता हो कि अरे यार क्या कर रहे हैं, सो बड़ा मिस करोगे इसको, कॉलेज लाइफ को. और जिन लोगों को लगता है कि नौकरी लग जाएगी, बहुत सारे पैसे मिलने लगेंगे, आई विल बी किंग ऑफ, वैसा कुछ होने वाला नहीं है. किंग आप अभी ही हो. तो अभी पढ़ाई को एंजॉय करो, एंजॉय में पढ़ाई करो, और इन्फॉर्म रखो अपने आप को. अगर नहीं इन्फॉर्म रखोगे, आपको आपकी जगह टेम्पररी रहेगी, कहीं भी परमानेंट नहीं रहेगी. सो यू माइट गेट सेलेक्टेड इन वेरी गुड ऑफ कंपनी, बेस्ट ऑफ द कंपनीज, बट योर पोजिशन विल बी टेम्पररी. The person who has good information about market, product, people, pricing, positioning, this, that, or current environment, geopolitical, or the climate, the this, whatever is affecting actually your company and business, अगर आप उसके लिए informed रहोगे, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा. Otherwise, your position will be temporary. Please understand, because हर किसी के लिए replacement बना हुआ है, हर किसी के लिए replacement बना हुआ है. Once I was leaving a company, I'll just share a small 2-line story. Once I was leaving a company, and everybody was stopping me. Why have you resigned? Why don't you stay there? You have done very good. You got always outstanding rating. You got promotion. You got this, right? But I was adamant that no, I'll leave this company, and because I was getting some good offer from other company. So one of my colleagues said कि यार इतना तेरे को कह रहे हैं लोग, why don't you stay? मतलब इतने बड़े लोग कह रहे हैं, चाहे इतने जो भी हैं तेरे दोस्त यार, सीनियर जूनियर, सब लोग कह रहे हैं, why don't you stay? तो I just told him one thing, कि ऐसा नहीं है कि मेरे चले जाने से कंपनी बंद हो जाएगी, और the way it is growing will start seeing a degrowth. ऐसा कुछ नहीं होगा, कंपनी फिर भी चलेगी. People are just respecting whatever I have done. They are showing the respect what I have earned in my lifetime. तो वो सिर्फ मेरा रिस्पेक्ट मेरे को दे रहे हैं कि तुमने 4 साल 5 साल जो तुम थे उस टाइम पे तुमने अच्छा काम किया. दिस इज योर रिस्पेक्ट दैट वी आर ट्राइंग टू स्टॉप यू. इफ यू स्टॉप देन इट्स ओके. ऐसा नहीं कि दूसरे दिन मैं स्टॉप हो जाऊंगा तो मेरे को मेरे बॉस की कुर्सी पे बिठा देंगे एंड दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन किंग टू मी. नो, वो सब कुछ वही रहेगा. लेकिन जब आप जाते हो तो ऑलवेज अंडरस्टैंड देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ यू. But whenever you go,
you should leave a mark कि अगर आप कभी कम बैक करना चाहो, आप वापस आना चाहो, तो that some place is there for you, and that will only be done when your knowledge level is up, your information level is up, your data level is up. Because हर कंपनी में जो लोग आईटी से भी जाते हैं, जो लोग अच्छी अच्छी मतलब लाइक पीपल फ्रॉम आईआईटी और पीपल फ्रॉम एनआईटी और सम वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं है कि जो वो पढ़ते हैं वही जाके वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. when they go there, they start learning, everyone start learning from their workplace, और वहीं से उनका एक्चुअल काम शुरू होता है, और वो तभी होगा when you are equipped with some good information and data. So my first thing was this only, and the second thing was spend equal amount of time in library and research section, with newspaper, with some good news agencies, and equal amount of time with Facebook, WhatsApp, Instagram, this. So everything has to be in equilibrium. आपको अपना सोशल मीडिया भी इंजॉय करना है, दोस्ती यारी भी इंजॉय करनी है, लाइफ भी इंजॉय करना है, पढ़ाई भी इंजॉय करनी है, और अपना स्किल्स भी इनहेंस करना है. एंड हर एक न्यूज से, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं. जो फर्स्ट पॉइंट था टू बी इन्फॉर्म्ड एंड बी अपडेटेड फ्रॉम द करंट वर्ल्ड, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने इंफॉर्मेशन तो ले ली, डेटा प्रोसेसिंग आप लोगों ने सीखी होगी कि इंफॉर्मेशन के बाद हम उसको क्या बनाते हैं. इंफॉर्मेशन आपने बहुत सारी ले ली, बहुत सारी कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी ये, बहुत सारी वो, बहुत सारा पढ़ लिया. what is your take on those information or the news? आपका उसमें से क्या अंडरस्टैंडिंग है? दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर हम सिर्फ न्यूज को पढ़ रहे हैं और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि मेरे लायक ये क्या है क्या नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है. आप प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. if you're just doing for the sake of understanding, sake of reading or getting some information, and if you're not processing that information for your knowledge, then stop wasting your time. So example आपको मतलब अभी याद नहीं आ रहा, but because it's an extempore, मैं बिना सोचे बिना देखे आप एक्सपीरियंस शेयरिंग है. so अगर आप कोई भी न्यूज पढ़ते हो लाइक मे बी सम, अब जैसे व्हाट्सएप ने जियो को इतने सारे पैसे दिए, या फेसबुक ने जियो के साथ कोलैबोरेशन किया, गूगल ने जियो के साथ कोलैबोरेशन किया, ठीक है, तो दैट इज अ न्यूज, दैट इज जस्ट अ न्यूज, राइट. व्हाट इज योर टेक और व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ओवर दैट न्यूज? क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या होगा, और क्यों उसने दिया? कि अगर इतना बड़ा पैसा, अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर लगा रहा है जस्ट फॉर बाइंग अ स्टेक ऑफ 2% or 3% in a newly formed company like Reliance Jio, who is a telecom company. So why it has spent so money? So it's just an example. Electric vehicles India में 2030 से शायद मैंडेटरी हो जाएंगी. तो what is your take? Why it is मतलब ये this is a news. So जो भी कोई पूछेगा, so maybe आयुषी और सौम्या, सोनम, प्रियंका, कृति, भूपेंद्र, I can see Shivam. So anybody asks, you can easily say this, yes, I know that electric vehicles will be mandatory from 2030, and some more extension might come, but that extension might be 6 months or 1 year only. But what is your take? What have you understood that? आपने उसमें से क्या लिया, आप उसको क्या समझते हो, वो कैसे आपको हेल्प करेगा, आप एक न्यूज से दूसरी न्यूज को जोड़ना कैसे सीखते हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब आप बैठोगे कहीं डिस्कशन में अपनी कंपनीज में, व्हेन यू गेट प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनीज, एंड आई एम श्योर यू विल बी, सो जब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो आप सिंपली ये कहोगे कि नो इट इज गोइंग टू बी मैंडेटरी फ्रॉम दिस एंड दैट ईयर एंड दिस एंड दैट टाइम. सम मोर एक्सटेंशन माइट कम, माइट नॉट कम. गवर्नमेंट इज प्लानिंग दिस, गवर्नमेंट इज नॉट प्लानिंग दिस, राइट? So this is a piece of information, but what you are going to make out of that information is very very important. That what my company should also do, or my company should also expand or understand, think, not think, refrain from this news or attach from this news, detach yourself. So this is very very important कि आपने पहले तो पढ़ाई की लाइब्रेरी में, रिसर्च सेक्शन में, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, यूट्यूब में, वीडियोस में, न्यूज एजेंसी के साथ,
बट आपने उसका क्या फायदा क्या लिया, या आपका उसमें से क्या अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इन योर डेली लाइफ or maybe business, or maybe some of you will go for your own entrepreneurship, will start your own company, business, product, or maybe associated with some, so maybe freelancer. So आपको उसके लिए भी important है, the person who is entrepreneur, उसका सिर्फ आइडिया होता है, सिर्फ और सिर्फ. I have met many of the startup CEOs and some big shots. They only have good ideas, and they have made those ideas on the basis of the information or the knowledge data they have got from market research on wherever and everywhere. You can, if you can see, if you want to search anything now, internet is the, I don't know what to say this, but maybe minds is a very small word for internet. The person who knows how to यूज गूगल, हाउ टू यूज इंटरनेट ना, उसके लिए ये बहुत छोटी चीज है लाखों करोड़ रुपए बनाना. सो एंटरप्रेन्योर्स आर नथिंग बट जस्ट अ कलेक्टर ऑफ गुड इंफॉर्मेशन एंड डेटा, और वो उसको एग्जीक्यूशन में डालते हैं विद द हेल्प ऑफ सम गुड इन्वेस्टर. इन्वेस्टर कब आपसे इंप्रेस होगा? व्हेन योर आइडिया हैज अ गुड बेस तभी होगा when you have done some market research, you have done some study, when you have done some data collection, और आपने लाइव उसको मार्केट में कुछ किया है, तभी और सिर्फ तभी आपको इन्वेस्टर पैसा देता है. Many of you might know that all the startups are going to losses currently, whether it is Flipkart, whether it is Ola, Uber, or Zomato, or whether, I mean, all our daily use apps are going to losses year by year, and losses are not small losses. 3,000 crore, 4,000 crore year on year losses, and they are making all those losses for let's say 5 or 10 years, मतलब since inception, जब से वो कंपनीज बनी है. बट दे हैव देयर आइडियाज. दिस पेटीएम एटलीस्ट जो आप लोग डेली यूज में लाते हो, दिस पे फोन पे, सॉरी, all are in losses, but their investor are pumping more and more money every day, because their idea is good, their reach has good, their the way they have presented their idea into business was very very good, very actually helpful. So आप लोगों को डेटा कलेक्शन के साथ साथ डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, जो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन. तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसको अपने लाइफ में कैसे यूज में लाओगे. ठीक है, बिकॉज दीज आप देखो क्या है, फर्स्ट आई हैव टू अप माई स्किल्स, आई हैव टू अपग्रेड माई स्किल्स, देन ओनली आई कैन सेल, और आई कैन सेल माई सेल्फ आइडियाज, प्रोडक्ट, और वट एवर आई एम डूइंग इन एवरी डिपार्टमेंट. सो जब आप जाओगे, अब जब तक अपने आप को आप अपग्रेड नहीं करोगे, डू नॉट एक्सपेक्ट सम गुड रेस्पेक्ट और गुड सैलरी, गुड पोजीशन, गुड लाइफ, if you are not ready to upgrade yourself. And books only or the newspaper only cannot upgrade your skill. You have, there has to be a mix of both, then only you can upgrade your skills. So this was the more of the upgrading your skills, and you should participate on the majority of the presentation part, debate part, because अभी आपका टाइम यो आ गया है कि you will be going to present yourself daily at least 3 or 4 times in your life. अभी हम भागते हैं कि नहीं एक क्लास में प्रेजेंटेशन है फ्राइडे को, थर्सडे को, 3 days बाद, 3 days later, 2 days later, week later. बट जब यहां से आप निकलोगे ना, यू विल बी प्रेजेंटिंग योर सेल्फ 3 times a day, मे बी 4 times a day. और जब तक ये आपका हेजिटेशन रहेगा, क्योंकि मैं नए बच्चों को देखता हूं, द पीपल हु हैव कम फ्रॉम IIM, मतलब in my team only there are 3 IIM graduate, and the way they present themselves and the way the other school guys present themselves is very very different. And understand, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट में जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो, योर मीटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम. Most important time, your communication is the most important arms or immunization. आप कैसे किसी भी मीटिंग को स्टार्ट एंड कंक्लूड करते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई रिक्वेस्ट आवर टीचर्स ऑल्सो कि इनकी
कोशिश ये करो कि इनका पर डे एक ना एक प्रेजेंटेशन हो या एक ना एक डिबेट हो, बिकॉज दिस विल एक्चुअली हेल्प नाउ. अब आपका किताबों का आपने जितना पढ़ना था 75% ऑफ योर बुक्स यू हैव ऑलरेडी रेड. 25% मतलब 4 सेमेस्टर में एक सेमेस्टर ही रह गया होगा, राइट ऋतु? तो 75% आपने अपने बुक्स की नॉलेज ले ली है, 25% बुक्स का बचा हुआ है, बट मेजोरिटी पार्ट अभी भी बचा हुआ है. यू शुड ऑलवेज एंगेज योर सेल्फ in maximum to maximum debates and presentation to enhance your communication, enhance your presence, enhance your understanding level of anything, right? किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, मैं ये वाला टॉपिक लेके इसको प्रेजेंट करना मेरे को ठीक नहीं है, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, मेरे लिए ये ठीक नहीं रहेगा, मैं ये वाला टॉपिक चूज करता हूँ, मैं ये वाला. तो ऐसा है ना कि आपके कॉलेज में ना आपको प्राइज नहीं दिया जा रहा इसके लिए. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू. और जो सेकंड आएगा उसको 50,000 रुपए, और जो थर्ड आएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, फोर्थ वालों को तो ऐसा कुछ नहीं होगा. सो जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ, डू नॉट हेसिटेट, जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ, प्रेजेंट योर थॉट्स, आइडियाज, वट एवर यू हैव गैदर्ड ऑन दिस what to say, internet and books and other things. So this is very, very important. Please understand, gathering of information, data interpretation of those information, participating in more and more presentation and debates or expressing idea, writing something is very important. If you start writing on something, this will also help you to form your communication to a customer. क्या होता है कि कस्टमर मीन्स के एनीबडी एक्चुअली, जब हम कस्टमर के पास जाते हैं या फिर अपने सीनियर्स के पास जाते हैं प्रेजेंटेशन देने, या फिर अपने कलीग्स के पास प्रेजेंटेशन, या सीनियर मैनेजमेंट को, तो उस टाइम व्हेन अगर हमने कुछ पहले से लिखा हुआ है या पहले से हमने कुछ प्रैक्टिस की है, तो दैट कम्युनिकेशन इज रिमेन्स इन वेरी शेप मैनर. अदरवाइज क्या होता है कि वो इधर उधर जाना शुरू होता है, फिर हम और परेशान हो जाते हैं. तो जब तक हम लिखेंगे मतलब नॉट नेसेसरली कि यू शुड राइट एवरी टाइम, बट इससे क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन एक शेप में रहती है और आपका और आपके सामने वाले का टाइम खराब नहीं होता. अदरवाइज जब भी आप किसी भी उसके बाद में आपको बता, जब भी किसी कम्युनिकेशन में आप अननेसेसरी बातें करने लगते हैं, दैट कम्युनिकेशन और द मीटिंग बिकम्स वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग. आई लेट यू नो कैसे होती है वो और कैसे हम करते हैं. यू विल अंडरस्टैंड कि अभी आने वाले टाइम में 6 महीने बाद ही जब आप लोगों की प्लेसमेंट हो जाएगी, व्हेन यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, तो कैसे आप लोगों का नुकसान करेगी. और इसके बाद जो मेरा पॉइंट रहता है कि आप लोगों ने बड़े सारे वो देखे होंगे फिल्में या फिर यूट्यूब वीडियोस कि कोई बंदा इंटरव्यू में जाता है, उसको सामने वाला बोलता है ये पेन बेच के दिखाओ, ये बेच के दिखाओ, ये करके दिखाओ, सेल मी एन आइडिया. सो वैसा भी हो सकता है और उसके बड़े सारे ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है. मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू पीपल आर मोर टेक सेवी देन अस, बिकॉज वी आर 15 years old person. नहीं ऋतु, when we started internet was not a very common thing, है ना. nowadays your mobile, हमारे पास तो था ही नहीं. हाँ. सो हमारे क्लास में एक लड़का था, आई विल नॉट नेम हिम, वो मोबाइल फोन पहली बार लेके आया था जिसमें कैमरा था. वी वर जस्ट होवरिंग अराउंड हिम, ठीक है. उसके पास एक कैमरे वाला फोन था और हमारे पास तो बहुतों के पास था ही नहीं, और जिनके पास था ही वही नोकिया 1100 या वो बिना कैमरे वाला फोन था. और इंटरनेट वाज नॉट एलियन बट लाइक एन एलियन थिंग. और उस टाइम डेटा का कॉस्ट, अभी क्या है, डेटा इतना सस्ता है और इतना इजीली अवेलेबल है आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप, टैब, ये वो इतना अवेलेबल है. अभी 2-3 years बैक 1 GB एयरटेल वाज ऑफरिंग फॉर 300 rupees, 1 GB ओनली फॉर एंटायर मंथ. नाउअडेज आई डोंट नो मतलब कितने में क्या मिलता है, मुझे लगता है 200 रुपए में पूरे महीने का मिल जाता है या 150 रुपए में, कुछ ऐसा है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. सो डेटा आनंद, एक चीज और चाह रही थी मैं, स्टूडेंट्स को आप सेल्स स्किल्स के बारे में कुछ, जो आपने 15 years का जो एक्सपीरियंस है, आ रहा हूँ, अब उसी पे आ रहा हूँ. तो अभी तक मैंने वो बताया कि आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया. दिस पार्ट वाज बिफोर एंटरिंग द मीटिंग.
There are two parts of sales or the customer meeting. First, before the meeting, before entering the meeting room, and after entering the meeting room. So the part I am going to explain now is somewhat out of the room and inside the room. Now you are just stepping in the customer meeting or the seniors meeting or the management meeting. So there is one thing called belief system. अभी आप लोगों को एक ज्ञान लगेगा कि बिलीफ सिस्टम, मोटिवेशन, दिस, बट अगर बिलीफ सिस्टम ना हो ना, बिलीफ सिस्टम मीन्स के अपने आप पे भरोसा. टिल द टाइम यू आर नॉट confident about yourself, you cannot do anything. And the moment you would start thinking कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी से आप करना एक्चुअली शुरू कर पाओगे. योर टाइम स्टार्ट देन ओनली. उससे पहले अभी आपका टाइम होता नहीं है. If you are not convinced about the process, ideas, thought, service, product, whatever you are going to present, if you are not convinced or you are not believe, you do not have belief over that, you cannot do anything. And we have numerous examples, numerous, not once, numerous example. I always boast on the example of Mary Kom, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, और एक फिल्म आई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, जिसमें पत्थर तोड़ता है, पत्थर तोड़ के रास्ता बना देता है, मेरे को याद नहीं आ रहा. सर मांझी, दशरथ मांझी, यस, द मांझी फिल्म. मांझी, उसमें भी उसको बिलीफ ही होता है कि नहीं, ये सब लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट तक हार गई है कि ये पहाड़ नहीं टूटने वाला और यहां से रास्ता नहीं बन सकता, और उसकी बीवी मरती है और वो रास्ता बना देता है. ओनली एक वो हथौड़े और एक जो उसका होता है हथौड़े के साथ, उसके साथ वो पूरा रास्ता बना देता है. मैरी कॉम, शी बिकेम वर्ल्ड चैंपियन इवन आफ्टर बिकमिंग अ मदर. ये सबको पता होगा. उससे बड़ा चैंपियन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा. देयर हैज बीन हुसैन बोल्ट, और देयर हैज बीन मार्क लुइस, और देयर हैज बीन मेनी ऑफ देम. लेकिन मैंने मैरी कॉम से बड़ा चैंपियन नहीं देखा कि उतने कम रिसोर्सेज में, उतने एडवर्स प्लेसेस से, उतने एडवर्स सिचुएशन में, सोसाइटी में, इट वाज जस्ट हर सेल्फ बिलीव. उसका एक पंच जो था एक लड़के पे, नॉर्थ ईस्ट के एक लड़के पे जब पड़ा था, she started believing that yes, my punch has that much strength that I can win the world. And with the help of so less resources, and the place she was in, मिजोरम में, मणिपुर से है वो लड़की, she became mother in very early age. She gave birth of some 3 or 4 children, and even after that she became world champion 3 or 4 times. She won this Olympic medals also. तो जिनको लगता है कि also I met a girl, मतलब हमारा एक फंक्शन हुआ था अभी लास्ट ईयर व्हेन, अभी तो हमारे यहाँ ट्रैवल बैन लगा हुआ हमारी कंपनी में, nobody can travel anywhere. So last year I went to Bombay for a invite. I met Arunima Singh. I don't know how many of you know her. Arunima Singh is a girl from Lucknow. एंड अब मैं जब बताऊंगा तो शायद आपको याद आ जाए, नाम से नहीं याद आएगा. तो वो एक बार उसको चोरों ने, मतलब ट्रेन में उसके साथ छीना झपटी के दौरान उसको उसके कुछ पैसे गहने छीने और उसको धक्का दे दिया, ट्रेन से धक्का दिया, और उधर से एक ट्रेन आ रही थी, उसके पैर कट गए. एंड इंटायर नाइट शी वाज लाइंग ऑन द रेलवे लाइन. 49 ट्रेन्स जस्ट पास्ड बाय. सुबह फिर भी उसको होश था हल्का फुल्का. सुबह जब उठी तो उसके पैरों में मक्खियां, कीड़े और ये सब लगने लगे थे. मतलब वो रेलवे ट्रैक पे जो रेलवे के जो स्टाफ होते हैं, दे वर इंस्पेक्टिंग एंड दे फाउंड अ गर्ल हु लॉस्ट हर लेग बट शी वाज अलाइव. तो उसको लखनऊ भेजा गया. लखनऊ से एम्स आई. एम्स में उसको दोनों पैर काट दिए गए. एंड मतलब ये मैं उसकी अपनी कहानी सुना रहा हूँ. उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. और तब उसको नकली पैर, जो प्रोस्थेटिक लेग्स होते हैं, तब उसने ये तय किया कि गॉड ने मेरे को बचाया तो कुछ तो रीजन होगा, अब तो मेरे को कुछ करना है. सो शी थॉट नन लेस देन अटेनिंग द एवरेस्ट.
अब उसने कहा कि जब करना ही है तो बड़ा बड़ा करना है लाइफ में। सबने समझाया कि अब तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, एवरेस्ट के लिए बंदे को कई सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती है, बहुत सारा फिजिकल अटेनमेंट चाहिए होता है, ये चाहिए होता है वो। शी वेंट टू बचेंद्री पाल, उससे मिली एंड शी सेड कि जिस दिन तुमने तय कर लिया ना, उसी दिन तुम चढ़ गई हो, बस डेट और टाइम नोट होना तुम्हारा बाकी है। And Arunima Singh attained all the 9 peaks of the world, not just the Everest. एवरेस्ट जहां एक एक कदम रखने के लिए लोगों को 15 से 20 सेकंड लगते हैं, अभी हम लोग कितना इजीली फ्रीली वॉक करते हैं अपने लाइफ में। एवरेस्ट में एक कदम के लिए 20 सेकंड 25 सेकंड्स लग जाते हैं। वैसी जगह पे गई विदाउट लेग, विदाउट एनी फिजिकल थिंग। इट वाज जस्ट हर सेल्फ बिलीव कि नो, आई डू दैट, आई डू दिस, मैं सब कर लूंगी। सो दिस वाज बिफोर एंटरिंग द मीटिंग। कि आप जब मीटिंग से बाहर हो ना, जब एंटर कर रहे हो, तो ऑलवेज सेल्फ बिलीव होना चाहिए, आपको अपने आइडियाज पे कन्विंस होना चाहिए। बहुत सारी मीटिंग्स इसलिए कंक्लूड नहीं होती या आइडियाज सेल नहीं हो पाते अपने मैनेजमेंट या कस्टमर के पास, या मतलब कंपनी में या कंपनी के बाहर, इसलिए कि हम खुद ही कन्विंस नहीं होते। उसके लिए हमारा जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है कि वी आर नॉट कन्विंस, मतलब ठीक है मेरे को ये काम करना था, आई हैव डन इट। सो ये एक काम आप सबसे पहले समझ लेना कि पहले आप उसको सेल्फ कन्विंस हो जाओ, और कन्विंस हो। जस्ट गाइस, आई एम जस्ट पुटिंग यू ऑन म्यूट बिकॉज वेरी अर्जेंट कॉल इज। सॉरी गाइस, ये भी एक मैनर है। वी शुड नेवर पिक कॉल्स वाइल सिटिंग इन कस्टमर मीटिंग, जो अभी मैं भी सीख रहा हूं। तो मैंने आपको बिलीव बताया, बिलीव के साथ साथ एक और चीज आती है, जिद। तो जिद भी होनी चाहिए लाइफ में। लाइफ में जिद नहीं है तो यू कैन हैव, ध्यान से सुनना, होपलेस एंड और एंडलेस होप। अगर ये दोनों चीजों, अगर ये आपकी जिद और आपका सेल्फ बिलीफ नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों को सुनने में अभी हो सकता है कि थोड़ा सा मोटिवेशनल लग रहा होगा, बट दिस इज एक्चुअल। जैसे किताबों में जो लिखा है ना, शुरू में जब आप जाओगे तो 6 महीने आपको समझ नहीं आएगा कि किताबों की चीजों का क्या फायदा था, और वी आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट इन आवर लाइफ। बट आफ्टर 6 months you will realize, when you start connecting the dots, you will realize that बुक्स में बिल्कुल सही लिखा था, हमें एक्चुअली वही करना है। हमारा काम करने का तरीका अलग है, हम प्रेशर में आके हम कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट टेकिंग द शॉर्ट रूट्स, और वो आपको शॉर्ट रिजल्ट्स देंगे, छोटे छोटे रिजल्ट्स देंगे, बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे भी नहीं आपको। एंड राइट। हाँ, क्योंकि जब आप जाते हो ना तो उस टाइम प्रेशर आप पे होता है पूरा। यू आर न्यू, आपको भी समझ नहीं आता कि कैसे करें व्हेन योर मेंटर और बॉस इज। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि कोई बॉस खराब भी होता है, सब लोग ठीक होते हैं, अपने काम करने का तरीका होता है। इट आज मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम उसको कैसे देखते हैं। कि अगर हमारे ग्रुप में वो फिट नहीं हो रहा है, हम उसके ग्रुप में फिट नहीं हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि नो 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 नो, वो ठीक नहीं है। और जब हम उसके ग्रुप में फिट हो जाते हैं या वो हमारे ग्रुप में फिट हो जाता है, तो हमें लगता है बहुत बढ़िया बॉस है। तो द सेम बॉस इज गुड फॉर somebody एंड सेम बॉस इज बैड फॉर somebody, और इट्स योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, डूइंग थिंग्स बाय योरसेल्फ, जो ये मतलब डिसाइड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते Right. हो। हाँ, Thank you, Anand. so You have given the lot of information. हाँ, Right. जस्ट So there are some questions from the student side. अब मैं बस ना अभी 10 मिनट में और खत्म कर दूंगा, एंड वील स्टार्ट दैट, बिकॉज मैं अभी चैट नहीं देख रहा हूँ, अभी चैट नहीं देख रहा हूँ। आई एम जस्ट एंटरिंग इन द रूम ऑफ मीटिंग, Okay. एंड बिकॉज इट वाज जस्ट आउटसाइड द मीटिंग। Okay. मीटिंग में घुसने पे आपको बहुत छोटे टाइम में ही आपकी मीटिंग खत्म हो सकती है। मीटिंग लंबी भी चल सकती है, इंटरेस्टिंग भी रह सकती है, बोरिंग भी रह सकती है, और वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपने पढ़ा कितना है, समझा कितना है, जानते कितना हो कंपनी के बारे में, पर्सन के बारे में, जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हो उसके बारे में। और वो सिर्फ 2-3 चीजों पे डिपेंड करती हैं।
सेल्स जो है, अगर कोई सेल्स को जिसने वो मतलब करियर के रूप में अभी से दिमाग में फिट कर लिया, उसके लिए मैं बता दूं कि सेल्स में एक चीज का ध्यान रखना है कि डोंट ऑलवेज सीम, ठीक है, आप कभी भी कोई भी लाइक नहीं करता, पहले तो ये समझ लो कि उसको कोई कोई चीज बेच के चला जाए। ये आप लोग ध्यान रखोगे, आपको कोई भी कोई चीज बेच के चला जाए, जब आपके दिमाग में ये बात आ जाती है तो यू फील चीटेड। तो कभी भी सामने वाले को ये फील नहीं होने देना, जैसे आप कभी भी स्ट्रेंजर से आप कोई बड़ी चीजें नहीं खरीद सकते। अगर ट्रैफिक लाइट पे कोई आपसे मिलता है 10-20 रुपए तक का तो ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग टीवी और कंप्यूटर ऑन ट्रैफिक लाइट, यू विल नॉट परचेज इट इवन इफ इट इज पैक्ड, इट इज मतलब ये कंपनी का, बहुत अच्छी कंपनी का भी हो, तो अगर वो ट्रैफिक लाइट पे आपको बेचेगा, आप गाड़ी के शीशे खोल के आप कभी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल नहीं खरीदोगे उससे, अगर वो सही भी हो, जेन्युइन भी हो, क्योंकि बिकॉज आप वहां पे अपने आप को फील करते हो कि यार ये तो मेरे को बेच के चला गया। दुनिया का कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता है कि उसको ये फीलिंग आया कि मेरे को कोई बेच के चला गया। यू ऑलवेज हैव टू present yourself as a solution provider or of a particular problem. Show your worth. Is it that? Showing the worth of the product. Yes, show your worth is a later part of the things. The first क्या है कि आप कस्टमर की, या जो भी जिसको आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, जिसको आप बेचने जा रहे हो, उसको ये समझ में आना चाहिए कि ही इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, नॉट अ सेलर। जब तक आप उसकी हेल्प नहीं करोगे, बी ए हेल्पर नॉट अ सेलर, बी ए कंसल्टेंट नॉट अ सेलर, ठीक है। अंडरस्टैंड द अनफोर्सीन और फोर्सीन, मतलब अननोन और नोन प्रॉब्लम्स। मे बी कस्टमर की कुछ प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करके अपने प्रोडक्ट्स के आप वैसे उसको बताओ। मैं आप लोगों को छोटा एग्जांपल दूंगा जो मेरे साथ लाइफ में हुआ है, ठीक है। एक तो आप वो देखो कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो आप उसको सॉल्व करो। दूसरा ये होता है कि उसकी प्रॉब्लम क्रिएट करो और नीड क्रिएट करो, एंड देन यू गिव हिम ए सॉल्यूशन। लाइक सर, आपने अभी डीजल की गाड़ी रखी हुई है जो 10 साल में खत्म हो जाएगी। नाउ आई एम हियर विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो 10 साल में मैंडेटरी हो जाएगी। तो उसकी आज की नीड है नहीं, बट यू स्टार्टेड क्रिएटिंग हिज नीड्स। सो देयर आर मेनी थिंग्स एक्चुअली कि सर आपकी ये चीजें अभी चल रही हैं, यू आर गोइंग गुड विद दैट, बट टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी डे, यू विल स्टार्ट lacking on your performance, lacking on your things. You buy this thing or you adopt this thing, your company or your things will start moving in this direction. So whenever you are whenever एक गुड सेल्समैन और बैड सेल्समैन में यही अंतर होता है कि गुड सेल्समैन हमेशा सॉल्यूशन की बात करता है, बैड सेल्समैन हमेशा अपने प्रोडक्ट की बात करता है। Nobody in this world is worried about your product. He is worried about his problem and his solution. कोई आपके प्रोडक्ट के लिए वरीड नहीं है कि आपने लाइफ में क्या बना लिया है और आप उसके साथ क्या करने वाले हो, जब तक कि वो आपके यूज का ना हो। जब वो आपके यूज का होगा तो वो आपसे परचेज करेगा। ऑलवेज बी, हाँ, आप लोगों ने वो एक हम लोग का चैप्टर, एक क्लास होती थी जो सर ने पढ़ाया था, मार्केट रिसर्च कुछ ऐसा करके, अभी है क्या सब्जेक्ट वो? यस सर। अच्छा, तो उसमें एक चीज थी ये ओपन एंडेड क्वेश्चन। यस सर। हाँ, राइट। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन याद रखना आप लोग, है ना, सभी के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं उसको अच्छे से पढ़ना आप लोग। और जब आप कस्टमर के पास जाओगे, ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एट द स्टार्ट ऑफ योर मीटिंग, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कस्टमर के पास आ रहे हो तो ओपन कर दो, मतलब मीटिंग में, जब आप मीटिंग में बैठ रहे हो तो डू नॉट आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसमें कस्टमर का यस, नो, मैं, तू का जवाब आने वाला है। ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन जब भी आप कस्टमर के पास बैठ रहे हो। और बताओ सर कैसे है, कैसा बिजनेस चल रहा है, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। व्हेन डिड यू स्टार्टेड दिस कंपनी? ओह, सो यू आर सेकंड जनरेशन सर। ओह, यू आर फर्स्ट जनरेशन। व्हाट वर यू डूइंग? मतलब आप क्वेश्चन छोटे पूछो, छोटे क्वेश्चंस पूछो और कस्टमर को छोड़ दो बोलने के लिए। या जो पर्सन आपके सामने, इवन मे बी ही इज सीनियर मैनेजमेंट और योर इंटरनल डिपार्टमेंट और हूएवर, सो उसको छोड़ो बोलने के लिए। यू कीप ऑन आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड। व्हेन थिंग्स बिकम्स व्यू, मतलब थोड़ा सा जब शार्प होने लगे बातें, तब उसके बाद आप उसको उस पे ले आओ जो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी और उसके सॉल्यूशन की बात करो। When you start closing your meeting, then start asking closed-ended questions. Closed-ended questions means के
when should I come next, today or tomorrow, right? मतलब do not give him no more time to मतलब कि ठीक है अगले साल मिलते हैं, अगले महीने मिलते हैं, 3 महीने बाद मिलते हैं. No. When you are concluding the meeting, you should conclude the meeting with closed-ended question. Whom should I contact with in your company, sir? For this work, whom should I go for